الحمدللہ ابدع الافلاق والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و ازواجہ و اہل بیتہ وعلی ابی حنیفہ و احمد رضا و احبابہما اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ قابل تکریم کارکنان انجمن و دیگر ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ذی وقار رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے اور آج حکیم الامت مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ ملکی صورتحال جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی یقیناً بات کریں گے۔ اور ذی وقار میرا ارادہ تھا کہ میں 5-10 منٹ اضافی لے لوں گا، مگر ہمارے رفیق انجمن میاں شہزاد صاحب، ان کے والد بزرگوار کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کا جنازہ بھی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا لیٹ بھی ہو جاؤں تو میں پہنچ جاؤں، تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا جلد ہی ان ساری باتوں کو نمٹائیں گے۔ تو کارکنان انجمن، ملک پاکستان جس صورتحال سے گزرا ہے یا ابھی تک گزر رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک بڑی ہی تشویشناک اور دردناک صورتحال تھی، اور اس میں جو ہمارے کارکنان کا جذبہ، جوش و خروش، نظریہ، اور جو ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ ہے، وہ میرے سامنے تھا، اور یقیناً میں بھی اس عمر سے گزرا ہوں، یہ ساری باتیں سامنے ہوتی ہیں، اور چونکہ انجمن طلبہ اسلام الحمدللہ اس ملک پاکستان میں سب سے پہلا منظم نیٹ ورک، منظم تنظیم ہے، جس نے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظم فروغ کے لیے منظم کام کا آغاز کیا، اور اس عظیم مشن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی ایشو ہو، ایسی کوئی بھی بات ہو، تو اس پر ہمارے کارکنان کا ایسا جو جذبہ ہے، ایسا جو جنون ہے، وہ یقیناً فطری ہے، اور ایسا جنون کہ جسے نہ روکا جا سکتا ہے، نہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایک ایک کارکن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مگر ذی وقار اس کے ساتھ ساتھ قیادت کے لیے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک کارکن کا جو انفرادی نظریہ ہوتا ہے، جو نظریات انفرادی بات ہوتی ہے، وہ اس کی ایک ذات کی ہوتی ہے، اس کے بدل جانے سے، اس سے پیچھے ہٹ جانے سے ایک بندے کی حد تک ساخت متاثر ہوتی ہے، مگر جب بطور تنظیم کوئی موقف، کوئی نظریہ دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
और तरीके लब्बैक क्या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले जितने हैं वो हमारे अपने हैं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात जब कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से करे तो हम उनके साथ हैं। लिहाजा हम इस मुक़द्दस काज के लिए तरीके लब्बैक के भी बिल्कुल साथ थे और साथ हैं। और जी वकार कुछ खिदमात ऐसी होती हैं कि जिनकी ख़बर होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो विदाउट ख़बर आप करते हैं। तो इसलिए ये जो सूरत हाल थी इसमें अंजमन तलबा इस्लाम ने तरीके लब्बैक के ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी ली और अल्हम्दुलिल्लाह कारकुनान के साथ वो रात वो तरीके लब्बैक पर, तरीके लब्बैक के कारकुनान पर, तमाम अहले सुन्नत पर, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा पर एक बड़ी भारी और करबनाक रात थी। तो उसमें मैं भी कारकुनान अंजमन के हमरा अस्पताल पहुंचा। वहाँ पर एमरजेंसी में उनके जो ज़ख्मी थे वो मौजूद थे। पुलिस के उठा ले जाने का शदीद ख़तरा था, खून की अशद ज़रूरत थी। तो जी वकार अंजमन तलबा इस्लाम के नौजवानों ने वहाँ पर उनकी केयर भी की, उनकी एहतियात भी की, उनको सिक्योरिटी भी दी, उनको रेस्क्यू भी किया। और साथ उन्हें उस वक़्त डॉक्टर कह रहे थे कि 8 बोतलों की एमरजेंसी ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजमन तलबा इस्लाम के कारकुनान का जज्बा काम आया और उससे कई ज़्यादा बोतलें वहाँ पर अरेंज होंगी और ब्रीड होंगी। और इसके साथ साथ हमने उनको मुज़ाहिरीन को खाने इफ्तारी का एहतमाम भी किया। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसके लिए भी तरीके लब्बैक की टीम के साथ हम इन कांटेक्ट हैं और इस कोशिश में हैं कि अल्लाह करे अच्छे अंदाज में तरीके लब्बैक इस जो करबनाकी है इससे निकल सके और तोहफ़्फ़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अच्छे अंदाज में पहरा दे सके। और इसके लिए तरीके लब्बैक के साथ साथ जिस तंजीम के सबसे ज़्यादा कारकुनान अरेस्ट हुए वो अंजमन तलबा इस्लाम के कारकुनान अरेस्ट हुए। और जहाँ पर भी एहतजाजी मुजाहरे हुए तो वहाँ पर भी अंजमन तलबा इस्लाम के कारकुनान सर फहरिस्त नज़र आए। तो इस पर मैं तरीके लब्बैक के कारकुनान के इस्तेकाम और अंजमन तलबा इस्लाम के कारकुनान के जज्बा को सलाम पेश करता हूँ। और जी वकार साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है। अंजमन तलबा इस्लाम आज 53 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद भी बड़े जोश के साथ, बड़े अज़्म व इस्तक़लाल के साथ, बड़े वक़ार के साथ ये नारा लगा सकती है कि किरदार की गाजी ईटी गई। क्योंकि इस 53 सालों में अंजमन तलबा इस्लाम कभी भी किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रही जो पाकिस्तान मुखालिफ हो। हम मुहिब्ब वतन हैं, हम इस वतन के वफादार हैं। ये वतन हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और इसका पहरा इंशाअल्लाह हमने देना है। और इसके बाद जी वकार अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा, आज के दिन आप पर बहुत ज़्यादा बात करना बनता है मगर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। अलबत्ता आपका फ़कत एक शेर बरकत के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर आगे अपने मौजू की तरफ निकलेंगे कि हुजूर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा, आपका जो इश्क़ रसूल है, आपकी जो मोहब्बत रसूल है और आपका जो दर्स मोहब्बत रसूल है वो क्या है। तो जी वकार वैसे तो अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने जब भी कलम उठाया मोहब्बत रसूल की बात की, इश्क़ रसूल की बात की, मगर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा का एक शेर जो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। तो जी वकार ये अल्लामा साहब किसी इंसान को दर्स नहीं दे रहे इस तरह कि वो ख़ुद से कह रहे हो कि अगर आपने हुजूर से मोहब्बत की तो हम तेरे हैं, बल्कि नहीं, ये जवाब शिकवा का आखिरी शेर है। और ये जवाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लिख रहे हैं क्योंकि उनमें उन्होंने बहुत सारे शिकवे किए। तो उन शिकवों के जवाब में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यूँ लिख रहे हैं कि गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आलम से, इन इंसानों से मुखातब है कि ऐ लोगो, आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हैं ये क्या है।
अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमामुल अंबिया के वफादार रहेंगे तो फिर ये जो चीज़ें मांग रहे हैं ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, फिर तो हम आपके हैं। और जी वकार जैसे कि हमारे उलमा रोज़े की फजीलत बयान करते हैं कि बकिया जो तमाम इबादत हैं उन पर कुछ न कुछ बताया गया है कि ये जज़ा है, मगर रोज़े के लिए अल्लाह पाक ने कहा है कि रोज़ेदार के लिए जज़ा मैं खुद हूँ। तो यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादारों के लिए भी यही कह रहे हैं कि ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, कि तू छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड करता है, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बन तो सही, मैं अल्लाह आपका हूँ। और ये जो चीज़ें आप मुझसे डिमांड कर रहे हैं, अरे इन्हें छोड़ो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार तो बनो। ये लौह और कलम ये आपके कब्ज़ा कुदरत में दे देंगे, ये आपके कब्ज़ा में होंगे, आप इस पर जैसे चाहोगे आलम की तकदीर लिख दे जाना। तो गोया ये बहुत बड़ी बात अल्लामा साहब ने कह दी वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कि इसकी जज़ा कोई ऐसी नहीं है कि जिसे गिना जा सके, जिसे नापा जा सके, जिसे तोला जा सके, बल्कि जो इमामुल अंबिया का वफादार बन जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि लौह कलम उसके कब्ज़े में दे देंगे, जैसे चाहेगा, जिसकी जो चाहेगा तकदीर लिखेगा। तो ये अल्लामा साहब का जज्बाए मोहब्बत रसूल, जज्बाए इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसके बाद जी वकार उस अजीम पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी सीरत तैयबा के हवाले से चूँकि आज हमने बात करनी थी तो उसकी तरफ आते हैं। तो जी वकार अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजू है हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बयान होने वाला मौजू है। आज इसे हम भी बयान करेंगे, मगर स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बातें वही होंगी मगर उन्हें थोड़े से मुख्तलिफ पैराए में सोचने, समझने और परखने की कोशिश करेंगे। तो जी वकार जब ज़ाते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां आपकी ज़ाते मुबारक के हवाले से बात की जाए, आपकी ज़ाते मुबारक का अहाता किया जाए, बल्कि अहाता तो दरकिनार, क्योंकि वो क्या है कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे उन्वां का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो जी वकार अहाता तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता आपकी ज़िंदगी मुबारक पर, आपकी ज़ात मुबारक पर नज़र डालें तो आपकी ज़ात मुबारक के तीन पहलू बनते हैं। एक जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इमामुल अंबिया आपकी सूरत मुबारक है, एक जनाब की मकाम मुबारक है, जनाब का शान मुबारक है, और तीसरी चीज़ जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज़माने में गुजारा हुआ वक्त है। अब हुआ क्या है कि हमारे यहाँ हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में बट गए। एक तरफ स्टेज लगता है, पीछे बैनर अवेज़ा होता है कि जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वहाँ पर जो गुफ्तगू होती है, जो बात होती है, जो खिताब होता है, जो बयान होता है, उसमें एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि जैसे कुछ लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को माज़अल्लाह कोई ऐसा बढ़ा रहे हैं कि जो शान खुदाबंदी या सिफ़ात खुदाबंदी है उसमें लेकर जाना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से उनकी सारी रिसर्च, उनका सारा काम, उनके सारे हवाले इस हवाले से होते हैं कि वो कहीं किसी तरह ये फ़र्क जो है ये वाज़े कर सकें और हुजूर को आम इंसानों की तरह साबित कर सकें। उसके बरक्स दूसरी तरफ
जलसा सजता है, स्टेज लगता है, बैनर यही आवेज़ा होता है कि जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर वहाँ पर अंदाज बदल जाता है, वहाँ पर फ़िक्र और तरीका बदल जाता है। वहाँ पर भी बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, मगर वहाँ पर बात मकाम मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। यकीनन ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ये हमारी अकीदतों का हिस्सा है। इससे हमारे ईमान ताज़ा होते हैं, इससे हमारे कलूबो इज़हान मुअत्तर हो जाते हैं, हमें रूहानी कैफ और सरूर आ जाता है और हम इसे अपनी बख्शिश का वसीला समझते हैं। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। और यकीनन जो कब्र का तीसरा सवाल जिसे हम ये समझते हैं कि आपके पास और फेल होने की वही सनद होगा कि मा कुंत तक़ूल, जो हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक दिखाकर पूछा जाएगा कि आप इस चेहरा वुदुहा के मुतल्लक दुनिया में क्या कहा करते थे। तो यकीनन ये हमारा अकीदा और हमारा ईमान है कि ये चीज़ें हमारी बख्शिश का वसीला हैं। तो जी वकार ये जो दूसरे वाला स्टेज है, जब ये स्टेज सजता है तो यहाँ पर जो बात होती है वो ये बात होती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा हलीमा की गोद में ऊँटनी पर सवार हुए तो कमज़ोर ऊँटनी तवाना होगी, उसकी जो सुस्त चाल थी वो तेज़ रफ्तारी में बदल गई और अब वो कलावे भरते हुए दूसरी ऊँटनियों से आगे निकली जा रही। खतीब का जो जोर होता है वो इस बात पर होता है कि जनाब अम्मा हलीमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अंधेरी कुटिया में हुजूर के आने की वजह से रोशनी हो गई। आपकी वो बकरी जिसकी खीरी दूध से खुश्क थी, हुजूर आए तो इतनी बरकत हुई कि जो अम्मा हलीमा की कुटिया में मौजूद बर्तन थे वो भी भर गए, पड़ोस से लाए हुए बर्तन भी भर गए और दूध फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। वो खतीब जब बोलता है तो वो इस बात पर जोर देता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंघुड़ा मुबारक में उंगली आसमान पर उठाई तो चांद उस उंगली के साथ दौड़ने लगा, भागने लगा। तो जी वकार ये सारी की सारी बातें जो हैं कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाकर सूरज को वापस पलट लिया। हुजूर ने उंगली उठाई तो आसमान पर चांद दो टुकड़े हो गया। तो इस दूसरे वाले स्टेज से ये बयान होता है। मगर बदकिस्मती से दोनों तरफ के स्टेजों से जो हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरे में गुजारा हुआ वक्त है वो रह जाता है और जिससे हमने सीखना होता है वो रह जाता है। क्योंकि ये दोनों स्टेजों से जो बातें बयान हुई हैं ये वो बातें हैं जिन्हें सुनकर हम अपना ईमान तो ताज़ा कर सकते हैं मगर इन्हें हम अडाप्ट नहीं कर सकते, इन्हें हम अपने अमल का हिस्सा नहीं बना सकते। हमारी उंगली से आसमान पर चांद नहीं टूटेगा, हमारी उंगली से सूरज नहीं पलटेगा और जी वकार हमारे जाने की वजह से खुश्क बकरियां इतना दूध नहीं देंगी। तो जी वकार फिर ये हुजूर की ज़िंदगी के वो पहलू हुए जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, मगर इन के आड़ में ये इतने बयान होते हैं कि हुजूर का मुआशरे में गुजारा हुआ वक्त जो है वो रह जाता है, जिसे हम अडाप्ट कर सकते हैं, जिसे हम अमल में ला सकते हैं, वो कम बयान होता है। अब इसके लिए मैं फ़कत मिसाल के तौर पर 2-3 वाक़यात बयान करूँगा कि जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हमारे स्टेजों से बयान होते हैं, मगर आज हम जिस तरह उनको बयान करेंगे तो यकीनन सुनने के बाद मुझे ये यकीन है कि आपको भी ये लगेगा कि ये वाक़यात तो सुने थे मगर ऐसे पहले कभी सोचा नहीं था। उसके लिए मिसाल के तौर पर मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ कि हमने बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा स्टेजों से हमारे खुतबा से जो वाक़या बयान होते सुना है वो ये सुना है कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह मुबारक में एक दूध का प्याला आया और आपके पास उस वक़्त 70 सहाबा का जमे गफ़ीर मौजूद था, भूख से निडाल थे। तो हुजूर ने वो प्याला सहाबा में मूव कर दिया
अब दूध का एक प्याला था, वो 70 सहाबा में सर्कुलेट हुआ, एक के बाद चलता रहा, और आखिर में हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी उससे नोश फरमाया, और वो दूध का एक प्याला हुजूर की बरकत से 70 सहाबा को सैर करके उसी तरह भरे का भरा वापस आ गया। वो प्याला खत्म नहीं हुआ। अब हमारा खतीब जो है वो इस वाक़े को बयान करता है, तो इसमें जो उसका फोकस होता है, जो उसकी तवज्जो होती है, जो वो बात सामीन को बताना चाहता है, जिस पर उनकी तवज्जो लाना चाहता है, वो ये होती है कि मेरे हुजूर की इतनी बरकत है कि आपकी बरकत से वो जो एक प्याला था वो 70 सहाबा को काफ़ी हो गया। तो ये हुजूर की बरकत है, हुजूर का मोजज़ा है कि आपका घुमाया हुआ एक प्याला 70 सहाबा तक पहुंचा। मगर जी वकार मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम ये कर सकते हैं? हमारा भेजा हुआ प्याला क्या वो 7 लोगों तक भी पहुंच सकता है? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। तो जी वकार फिर ये जो बात थी ये हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए थी, फकत यही बयान होती रही। मगर इससे आगे हमारे लिए एक सबक भी था जो हमसे मिस हो गया, जिसकी तरफ हम नहीं पहुंचे। अब हम तवज्जो करेंगे उस पर कि अब हम ये तो बयान करते हैं कि हुजूर का भेजा हुआ एक प्याला जो एक बंदे के लिए भी नाकाफी था वो 70 सहाबा तक पहुंचा, मगर इसमें एक और आदाब मुआशरत था, एक मुआशरे के लिए सबक था। वो ये था कि 70 सहाबा ने जिस प्याले से पिया हुजूर ने भी तो उसी प्याले से पिया। ये मिल बैठने की, एक बर्तन से खा पी लेने का जो हुजूर ने तरीका सिखाया, ये तरीका बयान होने से रह गया। तो जी वकार ये हमारा प्रॉब्लम होगा कि हमने जब भी हुजूर की बात की, हुजूर की शान को डिस्कस किया, मगर हुजूर ने जो मुआशरे में वक्त गुजारा जिसे हम अपने अमल का हिस्सा बना सकते थे, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम गई। इसी तरह मैं आपको एक और वाक़े की तरफ लाता हूँ कि हम अक्सर सुनते हैं हर दूसरे तीसरे स्टेज से ये बात, और नात खान से आप ज़रूर सुनेंगे कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप अम्मा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आपके हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए, तो सैयदा आप अम्मा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा कुछ ढूंढ रही थी, कुछ तलाश कर रही थी, तो हुजूर उन्हें देखकर मुस्कुरा पड़े। आपके मुस्कुराने से अंधेरे कमरे में इतनी रोशनी हुई कि अम्मा आयशा सदीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आपने वो गुमी हुई जो सुई थी वो ढूंढ ली। अब हमारे स्टेज से ये वाक़या बहुत बयान होता है, मगर मैं आपसे ये पूछूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि आपने यही सुना होगा कि जो उसमें जोर होता है, जो बात बतलाना चाह रहा होता है खतीब हमारा, वो यही होती है कि हुजूर के दंदान मुबारक की, हुजूर के तबस्सुम मुबारक की किस कदर रोशनी थी कि अंधेरा कमरा रोशन होगा, और इस कदर रोशन होगा कि वो छोटी सी चीज़ जो सुई थी उसको भी तलाश कर लिया गया। मगर जी वकार इसमें आगे एक और आदाब मुआशरत भी सिखाया जा रहा था, मुआशरे के लिए, मुआशरे में वक़्त गुजारने के लिए एक सबक भी दिया जा रहा था जो हमसे मिस हो गया, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल नहीं करवाई गई। अब मैं बोलूँगा तो आपको वो बात समझ आएगी, आप यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे कि इसको इस तरह भी परखना चाहिए था, देखना चाहिए था। तो जी वकार हुजूर के तबस्सुम मुबारक से, हुजूर की मुस्कुराहट मुबारक से और हुजूर के दंदान मुबारक के जाहिर होने से जो इस कदर रोशनी हुई है, क्या आप और मेरे मुस्कुराने से ऐसी रोशनी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम फिर बुरिश करके आ जाएं, हम फिर मिसवाक करके आ जाएं, हमारे मुस्कुराने से रोशनी नहीं होगी, तो ये वो हुजूर का फेल है जो हुजूर का ज़ाती फेल है, हुजूर का मकाम है, हुजूर की शान है, जिसको सुनकर हम अपने कुलूब इज़ान को अकीदत के साथ, एहतराम के साथ मुनव्वर कर सकते हैं, मगर हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब इसमें एक और दर्स है जो हम कर सकते हैं। वो दर्स क्या था कि हुजूर का घर आते ही अपनी ज़ौजा मोहतरमा को देख कर मुस्कुरा पड़ना, ये एक दर्स था हमारे लिए कि हम जो अपने घर में एक थानेदार का बिहेव करते हैं, तो हमारे लिए ये एक दर्स था कि लोगों घर आकर अपनी ज़ौजा को देखकर मुस्कुरा पड़ना, आपके
جو گھر کی زندگی ہے، آپ کے جو گھر کے نظام ہے، اس میں خوبصورتی لا سکتا ہے، اس میں بہتری لا سکتا ہے۔ تو یہ حضورت کی سیرت مبارکہ اس واقعے میں ایک پہلو تھا، مگر اس پہلو کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، کیونکہ ہمارے خطیب کا جو زور تھا وہ پہلے حضور کی شان بیان کرنے پر رہا۔ حضور کی شان بیان ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، مگر حضور چونکہ آپ کسی ایک زمانے کے لیے لیڈر نہیں تھے، آپ پوری انسانیت کے لیے لیڈر ہیں۔ آپ رہتی دنیا تک کے لیے ایک خوبصورت نمونہ پیش کر کے گئے ہیں۔ آپ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ نے ایک مزدور کے لیے بھی، آپ نے ایک ریوڑ چرانے کی صورت میں ایک اس کے لیے بھی، پھر آپ نے شیب ابی طالب میں ایک مسحور زندگی گزارنے کے لیے بھی، پھر آپ نے کفار کے محاصرے میں بھی، اور اس کے بعد ہجرت کا وقت بھی گزار کر، اور پھر مکہ میں مدینہ میں پردیس کی زندگی بھی گزار کر، اور پھر جنگوں میں جہاد کی زندگی بھی گزار کر، اور پھر ایک حاکم کی زندگی بھی گزار کر ایک پورے کا پورا درس ہر انسان کے لیے دیا۔ اور حضور کی سیرت مبارک ایسی سیرت مبارک ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ درس لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، میں تیسرا اور آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ ہم بہت سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں کی خاک پہ ہم قربان، آپ اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ ایک روٹی میں بناتا ہوں۔ حضور نے ایک روٹی بنا کر تندور میں لگائی۔ اب بقیہ روٹیاں جو تھی انہیں تو آگ نے پکا دیا، مگر جو روٹی ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے لگی تھی، اب آگ نے اس روٹی پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اب یہ واقعہ ہم بہت سنتے ہیں، بہت سارے خطباء سے میں نے سنا، اور میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے سنی ہیں، اور اس میں میں کوئی اپنی نئی ریسرچ یا کوئی نئی چیز نہیں، جو باتیں بہت سنی ہیں انہی کو بیان کر رہا ہوں، مگر اس میں سبق لینے کا ایک مختلف انداز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگی روٹی، اس کو آگ نے نہیں جلایا، اور ہمارے خطیب کا زور جو ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہوتا ہے کہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے لگی روٹی کو دیکھو، آگ چھوٹی نہیں، بالکل نہیں چھوٹی، آگ کی کیا مجال، بلکہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی کوئی اثر نہ کر سکے، یہ تو دنیا کی معمولی آگ ہے۔ مگر جی وقار، کیا ہم ایک وہ روٹی لگائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آگ اس کو نہ جلائے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر اس کو 20 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے نا تو وہ جل کر کولا ہو جائے گی۔ تو جی وقار، پھر یہ میرے حضور کا وہ شان ہے جسے ہم سن کر اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں، مگر اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اسے اپنے عمل میں نہیں لا سکتے۔ اب اس میں ہمارے لیے عمل کیا ہے؟ اب اس کو ہم اور کس انداز سے دیکھ سکتے تھے؟ تو جی وقار، کبھی اس انداز سے دیکھ لیتے کہ دیکھیں جی، تندور میں روٹی لگانا بھی میرے حضور کی سنت ہے۔ تو جی وقار، پھر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے نان بھائی جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تندور میں روٹیاں لگائیں، وہ تندور میں روٹی لگاتے ہوئے اسے فقط اپنی ڈیوٹی سمجھ کر نہ نبھاتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک یہ بھی خوشی دوڑ رہی ہوتی کہ دیکھیے یہ تندور میں روٹی لگانا بھی میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جناب دو جہاں کے آقا کی مبارک سنت ہے، اور میں وہ سنت نبھا رہا ہوں اور میں اس سے ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ تو جی وقار، یہ ایک انداز ہے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے اور سیکھنے کا کہ حضور کی ذات مبارک سے اور حضور کے ہر کام سے، حضور کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے، جہاں جہاں پر حضور کی خوبصورت صورت کی باتیں ہیں، جہاں پر حضور کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کی باتیں ہیں، وہاں پر حضور کے ہر واقعے سے آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں، معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ فقط ہم نے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہی نہیں کیا، بلکہ جی وقار ہم نے اپنے اولیاء اور صوفیاء کا جو مثالی معاشرتی کردار تھا اسے بھی ہم نے اچھاڑوں اور کرامات کے نیچے دبا دیا ہے۔ ہم جب بھی
किसी वली कामिल की ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हम फ़कत और फ़कत एक ही बात लेकर बैठे होते हैं कि वो साहिब करामत बुजुर्ग थे, उनकी ज़िंदगी से ये करामात रूनमा हुई हैं। मगर जी वकार जो उनकी ज़िंदगी से रूनमा होने वाली करामात हैं वो सुनकर हमारा ईमान ताज़ा होता है, मगर हम उसे अमली तौर पर अपना नहीं सकते। और अफसोस कि हमारे जितने सूफिया और औलिया हैं उन्होंने खूबसूरत मिसाली मुआशरती किरदार अदा किया। वो जब जब अपने मुआशरे में रहे तो वो अपने मुआशरे के मिसाली इंसान थे, खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर अफसोस कि हमने उनकी इस खूबसूरत ज़िंदगी को कभी जिक्र में नहीं लाया और लोगों को नहीं बताया कि उन्होंने कैसे कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। और फ़कत अम्बिया और औलिया के साथ नहीं, हमने तो किताबुल्लाह के साथ भी यही किया, कलामुल्लाह के साथ भी यही किया। कुरान में से भी हम अक्सर उन्हीं चीज़ों पर दरसे कुरान दे रहे होते हैं जिन चीज़ों को हम कर नहीं सकते, जो चीज़ें हम अमल में नहीं ला सकते उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। और वो चीज़ें जहाँ पर आदाब मुआशरत सिखाए जा रहे हैं, मुआशरे में वक्त गुजारने का तरीका सिखाया जा रहा है, उसको कभी हम अपने बयान में नहीं लाते। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अभी मौका बन गया, कोई एक और लेक्चर मुझे मिल गया तो अब मैं एक दरसे कुरान इसी हवाले से देंगे, मगर फ़कत एक नमूने के तौर पर एक बात बताकर इंशाल्लाह फिर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वो ये है कि हम एक छोटी सी सूरह माउन, अब देखें इसमें वो सारी बात नहीं करते, बात लंबी हो जाएगी। इसमें शुरू ऐसे करके कि क्या आपने दीन के झूठे देखे हैं, उसमें उनकी अलामतें बयान की हैं कि उनकी क्या क्या अलामतें हैं। वो सारी की सारी जो हैं वो बड़ी सुनने के काबिल हैं और वो आपको ये एक छोटी सी सूरत मुआशरे का एक मिसाली इंसान बना सकती है। इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे। मगर उसकी आखिरी आया मुबारक व यमनउनल माउन, जिसमें अल्लाह पाक कह रहा है कि जो अपने पड़ोसी को रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगे पर नहीं देता तो वो दीन का झूठा है। मगर बदकिस्मती से हमारी तवज्जो इसकी तरफ बहुत कम है। हमारा ये जो दीन मुबारक हमें एक खूबसूरत और मिसाली इंसान बनाने के लिए था। ये जो दीन आलमगीर दीन है, जो फितरी दीन है, जो दीन फितरत है, हमने इसको गैर फितरी बनाने की कोशिश की हुई है। हम इसको ऐसा बयान करने की कोशिश करते हैं कि जिसे जो दीन में नहीं है उन्हें मानने में दुश्वारी हो। मगर जी वकार ये दीन फितरत है, ये फितरत के ऐन करीब है। अगर हम इसके वो पहलू बयान करें जो इंसानों को इंसान बनाने के लिए बयान किए गए हैं तो इससे बहुत ही खूबसूरत नतीजे निकल सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, अवाम पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। हमें इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने की, हुजूर के साथ मोहब्बत करने की, हुजूर की नमूस पर पहरे देने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे तो मिलते रहेंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बाप को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।